Right, guys, Assalamu alaikum. And I have sent you an assignment. So, all those who are not present today, they should work on this assignment and turn it in the next class. And today, what we are doing is I'm moving to the question raised by one of my students. The question is there's a long question given about bubble sort. This one, let me open up this past paper. Which one is it? 2210 W24, Winter 24. And which one is it? Winter 24, paper 22. Otherwise, it won't be readable. Do you know the reference? Am I giving you the correct reference? Paper Winter 24, 22. Yeah, this was the question. So in this question, what do we see here? We see here swapping. We see here this swapping is being done. Then there is a flag variable. You have a look at it and you would understand that examiner is trying to swap the numbers, but are there errors, mistakes in it? But before we look at this, we should know what swapping is. You should remember what we covered before. So instead of directly talking about this question, I decided to give you a small recap, and then this way you can revise the bubble sort quickly, and after that you'll be in a position to understand the question thoroughly. So this is what I taught you in bubble sorting. In bubble sorting, we go pair by pair. These are the numbers written, and we have marked this pair number one in yellow color and comparing it. Is the smaller number on the top, a bigger number at the bottom? We're making the comparison. If the smaller number is already up there, so no swapping needed. That means move to the next pair in turn. And you can come up here. 34 is to be compared with 98, and then 34 is already smaller, so that means no change needed. And then we compare 98 and 7. 7 is smaller, should move up, and 98 should come down. So whenever this will happen, that the smaller number is at the bottom and then higher number is at the top, so we need to swap. तो बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे, स्वैपिंग करनी पड़ेगी. आगे चलते हैं, फिर 98 एंड 41 को कंपेयर करें तो 41 इज स्मॉलर, शुड मूव अप, एंड 98 शुड कम डाउन. फिर 98 एंड 19 को कंपेयर किया तो 98 स्मॉलर है, ऊपर मूव कर दिया. और फिर लास्ट कंपेरिजन 98 एंड 5 के दरमियान होगा, तो 5 ऊपर मूव कर रहे हैं, 98 शुड कम डाउन. तो ये अभी सॉर्टिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट समथिंग हैज हैपेंड. ये था फर्स्ट पास. फर्स्ट पास जब आप इस तरह कंपेयर करते हुए आए तो आपने देखा व्हाट हैज हैपेंड, द लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड येट. लिस्ट अभी सॉर्ट नहीं हुई है. और ये कौन सी सॉर्टिंग हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग की. असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग में आप कंपैरिजन करते हैं, छोटा नंबर ऊपर रहना चाहिए, बड़ा नीचे आना चाहिए. अगर डिसेंडिंग होता तो ये रूल ऑपोजिट हो जाता. छोटा नंबर ऊपर होता, बड़ा नीचे होता, तो हम इसको स्वैप करते. डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम 34 को ऊपर ले आते, 25 को नीचे, यानी स्वैपिंग करते डिसेंडिंग ऑर्डर में और बड़े नंबर को ऊपर लाते हैं. लेकिन अभी तो हम असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं. और ये जो लिस्ट है ये आपके पास जो है वो सॉर्टेड नहीं है, बट समथिंग हैज हैपेंड आफ्टर दिस फर्स्ट पास, एंड व्हाट इज दैट? इफ यू हैव अ लुक, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लिस्ट हैज टेकन इट्स पोजीशन. बड़ा नंबर अपनी जगह पर आ चुका है और सॉर्ट हो चुका है. दिस नंबर हैज टेकन इट्स पोजीशन. तो अब जब हम नेक्स्ट फेज में दाखिल होंगे तो उस नेक्स्ट फेज में इस नंबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारी लिस्ट कट डाउन हो जाएगी और हम इस लिस्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, and we'll take this list to the next phase. ठीक है? तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट फेज में मूव करें, हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर हमारे पास कितने थे. 1 2 3 4 5 6 7 नंबर थे. और इंडेक्स अगर 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक हम जाएंगे. और
इधर पहुंच के आप आगे नहीं कंपेयर करते, क्योंकि आगे तो कोई नंबर ही नहीं है इसके बाद, तो इसीलिए हम कंपैरिजन जब करते हैं तो 5 तक करते हैं, ताकि 5 फिफ्थ पोजीशन के नंबर को उसके नेक्स्ट पोजीशन के साथ कंपेयर करेंगे। आप 6 पोजीशन तक नहीं आते कंपैरिजन करते हुए, यही वजह है। दैट्स द रीजन यू सी दैट येलो मार्क is not at the last number. How many yellow marks we see there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altogether 7 numbers हैं, और येलो मार्क आपके पास कितने हैं? 6 हैं। तो ये कंपैरिजन होते हैं। तो येलो मार्क के जो कंपैरिजन है वो है n-1। इसी तरह अगर आप ऊपर देखें, ये फर्स्ट, ये वाला पहला फेज था। इस तरह कितने फेजेस और होंगे, तो वो भी n-1 पासेस होंगे। तो पासेस भी n-1 होते हैं, और कंपैरिजन भी n-1 होते हैं, याद रखो। कंपैरिजन भी n-1 होते हैं। अब एग्जामिनर आपको ये सारा प्रोसेस फिर से नहीं समझाएगा आगे डायग्राम में, अब सिर्फ शॉर्टकट तरीके से समझा रहे हैं। देखो, अब फर्स्ट पास के बाद हमने ये पूरा पास कंप्लीट किया था, और इसमें 98 हमारे पास यहाँ आ गया था। ये फर्स्ट पास के रिजल्ट आपको यहाँ दिखा रहे हैं, 98 आ गया। सेकंड पास के कंपैरिजन नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट एंड रिजल्ट दिखा रहा है टाइम को सेव करने के लिए। फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो दैट्स व्हाट वी टोल्ड, वी डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ पासेस n-1 होते हैं। तो नंबर हमारे पास टोटल 7 थे, मगर 7 नंबर्स के लिए जो पासेस हुए वो टोटल 6 हुए, मतलब n-1 पासेस। n-1 पासेस है और n-1 कंपैरिजन है। और आप देखें, पहले पास के बाद फर्स्ट नंबर हाईएस्ट आपको मिल जाता है। सेकंड पास के बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर अपनी सही पोजीशन पे आ जाता है। थर्ड पास के बाद थर्ड हाईएस्ट नंबर, फोर्थ पास के बाद फोर्थ हाईएस्ट नंबर, फिफ्थ पास के बाद फिफ्थ हाईएस्ट नंबर, सिक्स पास के बाद सिक्स हाईएस्ट नंबर। अब इसी डायग्राम को फिर से यहाँ कॉपी किया है मैंने, फिर से कॉपी किया है ये समझाने के लिए कि जब आप इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या जरूरत पड़ेगी आपको, क्या क्या वेरिएबल चाहिए होंगे। तो हमें चाहिए होगा एक एरे। एरे का नाम मैंने रख लिया माइलेज सपोज, और इसके अंदर 0 पोजीशन से लेकर 6 तक इंडेक्सेस है, और ये इंटीजर डेटा के लिए। इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो तो सिर्फ चेंज यहाँ पे स्ट्रिंग का आ जाता है, प्रोग्राम वही रहेगा, आगे कंपैरिजन वगैरह सब वैसे ही होंगे, सिर्फ यहाँ स्ट्रिंग आ जाता है। लेकिन अभी अब इंटीजर की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े तो हमारे पास वेरिएबल है आई। आई क्या करेगा? आई पासेस को कंट्रोल करने के लिए, आई पासेस को कंट्रोल करने के लिए। और जे क्या कर रहे हैं? जे कंपैरिजन को कंट्रोल करेगा, मतलब येलो वाले मार्क। तो येलो को कंट्रोल करने के लिए जे है, और पास नंबर 1, पास नंबर 2, इन पासेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वेरिएबल आई है। दो अलग अलग लूप हमें चलाने पड़ेंगे, एक आई और एक जे। आई के अंदर जे का लूप चलेगा। फर्स्ट पास में जब आप एंटर होंगे तो फिर आपको ये सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे, इस तरह से सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर। ओके। उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल है टेम्प का, और टेम्प का वेरिएबल क्यों चाहिए? टू क्रिएट बैकअप, टू मेंटेन बैकअप। अब आ जाते हैं इधर। ये मैंने आपको समझाया था फर्स्ट क्लास में। मान लेते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 4, और आप चाहते हैं यू वांट टू स्वैप दीज नंबर्स, सो यू हैव टू हैव द थर्ड वेरिएबल। तो इनको वैल्यूज को इंटरचेंज करना है, स्वैप करना है, तो आपके पास एक तीसरा वेरिएबल होना चाहिए। तो पहले हमने ये वाला काम किया। ए की वैल्यू 3 ये हो गई, बी की वैल्यू 4 का मतलब बी के अंदर 4 आ गया। टी में आप बैकअप बना रहे ए का, तो जो ए की वैल्यू थी वो आप लेकर आ गए टी के अंदर, वो ये आ गई 3। और फिर आप ए में लेकर आ रहे हैं बी की वैल्यू, तो ये ए में आ गई है बी की वैल्यू यहाँ से 4। और फिर आपने कहा बी के अंदर ले आओ टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू इधर आ गई है। ये सारा कोड जो है, ये जो कोड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे स्वैपिंग होती है। और मैंने बताया था डायगोनल लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आपको आइडेंटिकल वेरिएबल नजर आएंगे, जैसे टी एंड टी, जैसे ए एंड ए, एंड देन बी एंड देन बी। आपको ऐसे वेरिएबल नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो अब ए में 3 नहीं, अब ए में 4 आ चुका है, और बी में अब 3 आ चुका है। तो वैल्यू स्वैप हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। अगर हम ए और बी की वैल्यूज को स्वैप कर रहे थे
तो हमें कुछ इस तरह का कोड लिखना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि हमारे पास ये दो नंबर हैं, अगर तो अब हमारे पास ए और बी नहीं है, ये तो पहले था। अब हमारे पास एरे है, और इस एरे का नाम भी हम कुछ रख लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि इस एरे का नाम है डेटा, और इसकी लोकेशन नंबर है ये 0, और ये इसकी लोकेशन नंबर है 1। स्वापिंग मैं चाहता हूँ 34 ऊपर चला जाए, 25 नीचे आ जाए। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो इसकी कोडिंग आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे इफ डेटा ब्रैकेट ओपन, जहां पर ए है, यानी पहली वैल्यू ए की जगह पर हम 0 आ गया है, जहां पर भी ए था वहां आप 0 लिखेंगे। डेटा 0 यानी फर्स्ट नंबर। अगर डेटा 0 बड़ा है नेक्स्ट नंबर से, यानी डेटा 1 से, तो फिर हमें देन व्हाट, फिर हमें स्वैपिंग करनी है, फिर हमें स्वैपिंग करनी है, इनको ऊपर नीचे करना है। अब स्वैपिंग लिखने से तो स्वैपिंग नहीं होगी ना, तो स्वैपिंग के लिए आपने क्या करना होगा? स्वैपिंग के लिए आपको ये वाला कोड चाहिए, ये वाला कोड चाहिए। मगर इस कोड में जहां पर मैंने ए लिखा हुआ है वहां पर आपको डेटा 0 लिखना पड़ेगा। इससे पहले कि डेटा 1 का मतलब है ये वाला नंबर। हमने चेक किया कि 25 क्या बड़ा है 35 से, 34 से, तो 25 स्मॉलर है, तो दैट मीन्स स्वैपिंग नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये 125 होता, तो अब ये बड़ा हो गया तो स्वैपिंग चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं स्वैपिंग कैसे हो रही है, ये देख रहे हैं। स्वैपिंग के लिए जो पहले हमने स्वैपिंग की थी वो इस तरह की थी, इसमें माइनर सा चेंज आपको करना है बस। अगर आपको ये माइनर सा चेंज समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। यहाँ पर आप ए की जगह पे रखेंगे डेटा 0। जहां पर मैंने ए लिखा था, क्योंकि अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास डेटा 0 में पड़ी हुई है, और सेकंड वैल्यू हमारे पास बी में पड़ी हुई है, तो जहां पर बी है वहां पर आप डेटा 1 रख देंगे इस तरह से। और इसकी अब जरूरत नहीं होगी, ये आप रिमूव कर लेंगे, बी चला जाएगा यहाँ से, ये इस तरह हो जाएगा। करेक्ट, लाइक दिस। अब अगर आप अभी भी डायगोनल लाइन ड्रॉ करें तो आपको सेम वेरिएबल नजर आएंगे, जैसे यहाँ पे टी एंड टी, यहाँ पे डेटा 0 एंड डेटा 0, और यहाँ पे डेटा 1 एंड डेटा 1। गॉट इट? ये स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग करने के बाद फिर आप लिख सकते हैं नीचे एंड एफ। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। इसकी इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या थी? इसकी नेक्स्ट स्टेज में अगर मानो ये 0 और 1 नहीं है, क्योंकि पैर तो आगे बढ़ रहा होगा ना, पैर तो आगे बढ़ रहा होगा, पहले ये पैर होगा फिर ये पैर होगा, तो ये वैल्यू हम कैसे ट्रैक करेंगे? इसको हम ट्रैक करेंगे जे से, और इसको हम ट्रैक करेंगे J+1 से। नेक्स्ट में फिर ये जे बन जाएगा, और ये बन जाएगा J+1 आगे वाला नंबर, यानी पीछे वाला नंबर, द नंबर एट द बैक बिकम्स जे, और नंबर नेक्स्ट नंबर बिकम्स J+1। अब जहां पर मैंने डेटा 0 लिखा हुआ है वहां पर आप लिखेंगे डेटा जे, तो ये हो गया डेटा जे। और ये जो नंबर है ये हो जाएगा डेटा J+1, ये बन जाएगा J+1, और ये बन जाएगा J+1 यहाँ पर भी।
और आपका प्रोग्राम इस तरह से स्वैपिंग का ये कंप्लीट हो गया। दिस प्लेस इज कॉल्ड जे, दिस प्लेस इज कॉल्ड J+1। ये वही प्रोग्राम है जो हमने सबसे पहले बनाया था, उसी प्रोग्राम को यूज करके हमने स्वैपिंग कर ली बड़ी आसानी से। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसको करें कैसे। तो इसका स्वैपिंग का प्रोग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है फॉर का लूप। अब जरा चेक करते हैं ये लूप कितनी मर्तबा चलेगा। ये चल रहा है 0 से लेके मैक्स इंडेक्स -1। एन कितना है, एन के अंदर जा रहा है मैक्स इंडेक्स -1। मैक्स इंडेक्स कितना है, मैक्स इंडेक्स यहाँ पर था आखिरी इंडेक्स 6। तो ये हो गया, मैक्स इंडेक्स हो गया हमारे पास 6। तो 6 - 1 ये हो गया 5। और यहाँ पर क्या है, 0 से लेके मैक्स इंडेक्स यानी 6 - 1 ये भी चलेगा 5 तक। अब क्या हो रहा है कि ये वाला लूप पासेस को कंट्रोल करेगा, ये वाला लूप जो है वो कंपैरिजंस को कंट्रोल करेगा। ओ लेवल्स में तो आपको प्रोग्राम बना हुआ आता है, उसको फिक्स करना होता है आपने। ए लेवल्स में जब आप आएंगे एस लेवल में, तो इस तरह का प्रोग्राम आपको लिखना होता है, यही सेम कोड आपको लिखना होता है पूरा। अब यहाँ पर है फॉर का लूप, और मैं आपसे पूछूं यार ये फॉर का लूप कितनी मर्तबा चलेगा। ये चलेगा 0 से लेके 6 टाइम। इसको काट दें, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये चलेगा n टाइम्स, n कितना था 5, यानी 0 से लेके 5 टाइम्स। तो मैं पूछूं आई की आइटरेशन कितनी होंगी, 0 to 6 ऑल टुगेदर कितनी हो गई है। 6 - 1 था, सॉरी 5 था ये मैक्स इंडेक्स हमारे पास था 6। 6 - 1 तो यहाँ हो गया था 5, ये 5 हो गया। और 0 to n ये भी 5 था, n में 5 चला गया। चलें, अब आई का जो लूप है वो कितने टाइम्स चलेगा, वो चलेगा 0 से लेकर 5 टाइम्स। 0 1 2 3 4 5 टाइम्स। और अंदर वाला लूप जे का कितनी बार चलेगा, जब पहली बार आई चलेगा तो ये स्टक हो जाएगा अंदर 0 से लेके 5 टाइम्स के लिए, 0 1 2 3 4 5 टाइम्स के लिए। तो दैट मीन्स 6 टाइम चल रहा है, 0 to 5 6 टाइम हो गया है ऊपर। और ये वाला भी लूप टोटल 6 टाइम। तो एक मर्तबा जब आई का लूप चलेगा तो अंदर वाला लूप 6 टाइम चलेगा। तो दैट मीन्स ये भी 6 टाइम चल रहा है और ये हर मर्तबा में 6 टाइम चल रहा है। इन एवरी साइकिल दिस विल रन 6 टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ आई विल देयर बी, तो आप बोलें 6। हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ जे विल देयर बी इन एवरी साइकिल ऑफ आई, अगेन यू वुड से 6 इन एवरी साइकिल। एंड इफ आई से कि आई और जे मिला के टोटल आइटरेशन कितनी होंगी, जी आपसे पूछ रहा हूं। आई का लूप चल रहा है 6 टाइम, जे का लूप हर मर्तबा में 6 टाइम चल रहा है। अगर आप टोटल देखना चाहते हैं कितनी मर्तबा रेपिटेशन होगा ऑल टुगेदर, तो आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 36 टाइम्स। गॉट इट। तो आंसर ये है कि आई एंड जे कलेक्टिवली विल रन हाउ मेनी टाइम्स, 36 टाइम्स। ओनली आई विल रन हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। जे विल run how many times, 6 times, but how many times will be repeated, it will be repeated with I. Every time I is going to repeat, this J will run 6 times. चलो अब ये तो हो गया। अब देखते हैं ये प्रोग्राम क्यों एक इफिशिएंट प्रोग्राम नहीं है। अगर मेरे पास नंबर है सपोज ये 3 4 5 6 7 8 9, इसके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले जो मैंने एग्जांपल दी थी ये वाली, इसमें जो नंबर थे वो अनसॉर्टेड थे, अरेंज नहीं थे, सारे स्मॉल लार्जर मिक्स थे। अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, व्हाई दिस कोड इज नॉट इफिशिएंट, व्हाई दिस कोड इज नॉट एन इफिशिएंट कोड। ये एफिशिएंट इसलिए नहीं है, आपको अभी चला के पता लगेगा।
मैक्स इंडेक्स कितना हो गया? मैक्स इंडेक्स है 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया? बोलो जल्दी जल्दी, फीडबैक दो, शाबाश। 5. 5। फिर I0 टू मैक्स इंडेक्स माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 5 हुआ. 5 हो गया। J कितना हो गया? 0 टू N कितना हो गया? 5. 5 हो गया। अब आप जब लूप ये वाला चलेगा तो I की वैल्यू हो जाएगी 0। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रैकिंग यहाँ करते हैं इसकी। I की वैल्यू 0 हो गई है। अंदर आएगा पहली बार, फर्स्ट टाइम J will run and the value of J would become 0। अब ये क्या करेगा? माई लिस्ट और J अभी कितना है? J अभी है 0, तो इसका मतलब है 0 लोकेशन वाले पे जाओ। यहाँ पर आएगा 0, तो इसका मतलब है 0 लोकेशन वाले नंबर पे जाओ। ओडियो ऑफ दैट 3, इसका मतलब ये वही है, 3 को कंपेयर कर रहे हैं जो हमने यहां से उठाया। किसके साथ? J+1। तो J ये था और J+1 इसके बाद वाला नंबर है, नेक्स्ट नंबर। वो क्या है? वो 4 है, तो इससे मिलेगा 4। 3 बड़ा है 4 से? यस और नो? नो। No. दैट मीन्स दिस इफ कमांड विल नॉट रन। नो स्वैपिंग नीडेड। स्वैपिंग हुई नहीं। जब स्वैपिंग हुई नहीं तो ये यहां पर आएगा नेक्स्ट J। नेक्स्ट J का क्या काम है? नेक्स्ट J का मतलब है J को इंक्रीज कर दो और आगे बढ़ जाओ वापस। तो अब J हो गया है 1, J इज स्टैंडिंग एट 1, तो यहाँ पे J 1 हो गया। अब देखते हैं क्या करेगा ये। अब J हो गया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो इसका मतलब है फर्स्ट लोकेशन का नंबर यानी 4, और J+1 का मतलब है नेक्स्ट नंबर 5। इज 4 बिगर देन 5? इससे मिलेगा 4, इससे मिलेगा 5। आप कंपेयर कर रहे हो 4 को 5 के साथ। इज 4 बिगर देन 5? नो। तो दैट मीन्स ये फिर से मेहनत की, इसने चेक किया, पता लगा 4 स्मॉलर है और इसको स्वैपिंग करनी नहीं थी, ये वापस इधर आ गया। तो इसका मतलब है अगर लिस्ट सॉर्टेड है तो आपकी एफर्ट वेस्ट जा रही है, ये वेस्ट हो रही है एफर्ट। यहाँ पर प्रोसेसर is spending time unnecessarily because this list of number is already sorted. I hope you got the point. Yes. So that means when you use a for loop and you already have a sorted list, this for loop, both the for loop will still work till the stop point. For loops will still work till their stop point, regardless whether the list is sorted or not. So this makes it inefficient. ये इनएफिशिएंट हो गया क्योंकि यहाँ आ ही नहीं रहे, स्वैपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर आप इसमें ऐसा कुछ कर लें कि जब स्वैपिंग हो तो यहाँ कुछ मार्क लग जाए जिससे पता लग जाए कि स्वैपिंग वाज डन। जब तक ये स्वैपिंग होती रहेगी इसका मतलब है लिस्ट अनसॉर्टेड है। सो वी गोट टू डू समथिंग देयर एंड वी गोट टू चेंज द लूप हियर। इस लूप को चेंज करना पड़ेगा और यहाँ कुछ करना पड़ेगा जिससे ये पता लगे कि स्वैपिंग is continued and list is still unsorted, and this will be happening until the list is fully sorted. क्या करें इसके लिए? इसके लिए फिर एक efficient कोड एग्जामिनर डिस्कस करता है और वो ये। इस कोड से क्या होगा? इस कोड से अगर मेरे पास ये लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, पहला इंडेक्स 0 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैक्स इंडेक्स हो गया 6, -1 का मतलब है 5, चला जाएगा n में। रिपीट का लूप लगाया इसने। आप कब तक रिपीट होता रहेगा? अंटिल नो मोर स्वैप इज इक्वल्स टू ट्रू। जब तक नो मोर स्वैप में ट्रू नहीं आ जाता। अभी नो मोर स्वैप में क्या है? ये लूप के अंदर आएगा, नो मोर स्वैप को ट्रू कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो नो मोर स्वैप में ट्रू है, यहां लिखा है रिपीट, पहली बार चलाने आएगा तो नो मोर स्वैप अभी ट्रू है। J0, जब J की वैल्यू 0 हो गई है, कितनी मरतबा चलेगी? n टाइम, मीनिंग 5 टाइम ये लूप ने चलना है। अब J की वैल्यू 0 है तो 0 का मतलब है फर्स्ट नंबर इज मोर देन द सेकंड नंबर। नो इट्स नॉट, नो इट्स नॉट। ये अंदर आया ही नहीं। अगर अंदर आता
ये वाला काम करता है, ये करता है, ये करता है, और फिर नो मोड स्वैप को फॉल्स कर देता है। ये अंदर आया ही नहीं है। जब अंदर आया नहीं है तो ये वापस इधर जाएगा, जे की वैल्यू 1 होगी, दोबारा चेक करेगा 1 को, जे प्लस 1 के साथ, यानी 4 और 5 को कंपेयर कर रहा है। फिर से ये नंबर स्मॉलर है, ये बिगर है, ये फिर से नहीं चलेगा। फिर से नेक्स्ट जे हो जाएगा, और फिर ये नेक्स्ट इंटर्न ये नंबर्स को कंपेयर करेगा। 5 बड़ा है क्या 6 है, ये भी बड़ा नहीं है, फिर से ये इधर नहीं आएगा, नेक्स्ट जे पे जाएगा, नेक्स्ट जे 6 और 7 को कंपेयर करेगा। लिस्ट ऑफ जे पे 6 आ जाएगा, लिस्ट जे प्लस 1 7 को चेक करेगा, ये फिर से बड़ा नहीं है, 6 स्मॉलर है जो कि ऑलरेडी ऊपर है, यहाँ पे फिर नहीं आएगा, फिर ये इधर जाएगा, और अब जो कंपैरिजन करेगा 7 और 8 के दरमियान करेगा। फिर इसको नंबर स्मॉलर ऊपर मिला, लार्जर नीचे, फिर ये इधर नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट जे, और ये वापस इधर आएगा, 8 और 9 को कंपेयर करेगा, 8 एंड 9 कंपेयर होंगे, और फिर स्वैपिंग की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये लूप खत्म हुआ, ये चल गया लूप 5 टाइम। जब ये लूप खत्म हुआ तो इसने किया एन एरो एन माइनस 1, एन कितना था 5, तो 5 में से -1 करेगा तो ये हो जाएगा 4। लेकिन जब बाहर आएगा तो यहाँ लिखा है नो मोर स्वैप इज इक्वल्स टू ट्रू है। हाँ, यहाँ तो कभी आया ही नहीं था, ये वाली लाइन चली ही नहीं फॉल्स वाली, तो ऊपर ट्रू था, तो ये ट्रू इसका मैच करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो आपने देखा कि इसको सिर्फ इसने कितने कंपैरिजन किए, हाउ मेनी कंपैरिजन वर डन देयर, इफ यू चेक द कंपैरिजन, ये कंपैरिजन हुआ, फिर ये कंपैरिजन हुआ, फिर ये कंपैरिजन हुआ, और फिर ये कंपैरिजन हुआ, और फिर ये कंपैरिजन हुआ उसके साथ, और फिर आखिर में ये कंपैरिजन हुआ। बस ये कंपैरिजन एक पास कंप्लीट हुआ है, सिर्फ फर्स्ट पास। फर्स्ट पास जैसे ही कंप्लीट हुआ, इसने आगे सेकंड पास में गया ही नहीं, ये यहां से बाहर निकल गया, लूप खत्म। तो दिस इज मोर इफिशिएंट कोड। पहले कितने पासेस हो रहे थे, इसमें तो एक ही पास हुआ है। पहले कितने पासेस हो रहे थे, पहले हो रहे थे n-1 पासेस, 6 पासेस। क्यों? क्योंकि वहां जो टाइप ऑफ लूप्स यूज हुए थे वो डिफरेंट थे। वहां जो टाइप ऑफ लूप्स का इस्तेमाल था वो फॉर लूप थे, एंड फॉर लूप works blindly regardless whether the list is sorted or not sorted. They complete their loop till the stop value, regardless whatever the conditions are. Understood? Yes, sir. Okay. अब आपसे पूछे एग्जामिनर कि व्हाट मेड इट एन एफिशिएंट कोड, तो आप बोलोगे हाँ, देयर वी हैव इंट्रोड्यूस अनदर लूप, अ रिपीट अंटिल लूप। रिपीट अंटिल लूप इज टू बी यूज्ड, बस इतना लिखो, आपके लिए काफी है ओ लेवल्स में। रिपीट अंटिल लूप इज टू बी यूज्ड फॉर पासेस, टू कंट्रोल द पासेस। और एक आप बताओगे फॉर लूप कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द कंपैरिजन। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बताओगे, इसको कहेंगे फ्लैग वेरिएबल। इसको जितने भी ट्रू एंड फॉल्स वाला वेरिएबल होता है, जो आप टास्क कंप्लीट करना है नहीं करना, मतलब समथिंग हैज हैपेंड और नॉट हैपेंड, जब कोई ऐसा वेरिएबल आप बूलियन लेते हैं, दे कैन बी कॉल्ड फ्लैग वेरिएबल। तो देयर इज अ फ्लैग वेरिएबल नो मोर स्वैप दैट टेल्स यू whether the swapping was done or not done, or needed or not needed. This makes it, this makes it, these three things are making it efficient. Can you repeat what I've said? Repeat until loop is used. Repeat. The flag Control what? The passes, number of passes, and for loop. to control the comparisons. Good. And then the third thing, The flag a flag variable. Why that flag variable is needed? to know when it's like when you When don't need any more swaps. yeah, it would keep a track whether the swapping was done or not done. It would keep a track swapping was done or not done. Now I'm giving you screenshots of these pictures because the document has unnecessary stuff also, so I don't want to confuse you at this stage. So I'll just give you the necessary thing that's needed, the most essential thing. ये वाली पिक्चर चाहिए और इसके साथ साथ हमें चाहिए
This picture is needed. This was an inefficient code. Let me write it somewhere also. This code is not efficient code. As the for loop has been used there. For loop completes its cycle regardless of conditions. Sorted L is not sorted F. And there we see a more efficient loop. And this, there are three things that you should mention to the examiner. What are the three things making it efficient? Number one, this loop, the repeat until loop. Number two, the for loop. And number three, the swap variable. Let me change the color because this has a connection with this next. Oh. And then the third thing is a flag variable that was used. I should number them also. You will see number one, number two, and number three. These are the three things that you should talk about in your answer whenever the examiner would ask you why this code is efficient. Right. So coming back to the question that you sent me, you understood the first part already. You got the paper there, and then there was the second part. I have this paper here. These were the problems. Wrong variables were used, and then swapping true, and then now you can have a look and tell me, is it an efficient code, inefficient code? And you can tell me quickly what is making it efficient. Tell me, Urwa. It is efficient. It It is has efficient while loop, it has a while loop, it has a for loop, and it has a variable, swap variable that is keeping a track whether the swapping was done or not. See how quickly you can, give an answer of this now. What it says here, a bubble sort can be written to include the features that makes it more efficient. Use of a flag variable. Initially set it to true or false. It can be done in both ways. It can be done in both ways. Over here, the examiner is starting up with false and making it true here. In our code that I sent you, how was that? The code I sent you, we started up with true and we made it false. So it can be in both ways. So here, coming back to this, the use of a flag variable. Forget this. The use of a flag variable, that's important to show if the swapping has been done or not. Point number one, to stop the loop, it has been sorted. So list has to be sorted. The reduction in the time limit. So yeah, after the first pass, the program came out. So that means processor doesn't need to spend time on it unnecessarily. And the number of comparison, obviously, we cut down because it is not running all the passes, running just first pass and deciding it. Got it? yes. Okay. Moving to the next question that you told me was, but for that, I have to give you a little practical example. And I can give you that in VB, and then we can convert that into pseudocode later on. You would understand that quickly this way. Let me stop it here. Let me start a new recording for that. So bubble sorting has ended. Many people sometimes want to find out and they send me messages how to write down the program in Python for the bubble sort. So
In this video, let me give them a screenshot of that also. I do have a program saved already. I'll just open up that file and give an example of Python also. So this one video will have complete solution of bubble sorting this way. Uh, Net is dead, by the way, at my place. Oh, which net is it? CS? No, 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 no. I want this. Uh, eh, I showed it to my A-level students how to write down the program in Python. That was bubble sort practical number 3 coming up here. And that's the program written in Python. Not like that. So that's the program in Python. In Python, swapping is much easier. You just have to exchange the names. This was minus j plus 1. These two should be swapped. Just write them other way around. Make that j plus 1 first and j in the end. So these two will become equal into these two. This is how the swapping is done. And j is to be compared with j plus 1. And we transfer them to two different variables, first and second. So it becomes easier to write down this if command. If first is more than second, you could do that in pseudocode also. And this was an inefficient this was an inefficient code. Why? Because you're using two for loops and calling it using the main program. So see the difference. The list has been sorted there. So yes, done. And that's the program so that people can have a look at it and can write and test. So my O-level student doesn't need to go in that detail. If you want to do it for your testing, you can do that. You're always welcome to do that. Otherwise, those who have decided to use pseudocode in exams, so that should be enough. Now, going back to this and stopping it, stop recording.